Significant figures. This will be our new topic. So in physics, all the data that we have is measured or calculated from other data. Simple example लेते हैं length का. If you are measuring length, you can measure it with a meter rule, or you can measure it with a vernier caliper. Okay, vernier caliper का concept सबको पता है? Are you familiar with it? Yes, sir. Okay. क्योंकि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस भी आते हैं जेई में. हालांकि एंड में हम 11th स्टैंडर्ड के एंड में आई विल revise all the experiments, but still if you already know vernier caliper and screw gauge, that will be easier to solve problems there. अच्छा, length में if you measure the length, suppose your scale is like this, जिसमें सिर्फ एक सेंटीमीटर का डिवीजन है. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and you're measuring the length of a, let us say, a small pen or pencil. So let us say measurement is यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, जैसे आप the pen और it is coming here 7 और 8 के बीच में कहीं आ रहा है. So in physics what we do, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गेस करके मैं 7.5 लिख दूंगा. 8 के क्लोज है तो 8 लिख दिया, 7 के क्लोज है तो 7 लिख दिया, ऐसा नहीं करते. I will just write कि 7, it is 7 सेंटीमीटर. अगर मेरा मेजरिंग डिवाइस इतना एक्यूरेट नहीं है कि ये मेजर कर सकता है इसे, then I'll write a lesser value that is closer to it. That is the rule in physics. And suppose इसमें further small division है, तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बस इतनी ही है, 7 सेंटीमीटर तक ही बता सकते हैं ये. इसको 7.0 नहीं लिखना है, 7.0 गलत हो जाएगा, 7 ही लिखना है. 7.0 तब लिख सकते हैं जब इसमें फर्दर 10 डिविजन्स हो जाए. इससे फर्दर 10 डिविजन्स हो जाए and let us say it meets with 7.2. तो जब हमारा मीटर रूल और ज्यादा एक्यूरेट हो गया, तो हमारा मेजरमेंट भी एक्यूरेट हो गया. तो उसको 7.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बट 7.20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते. ठीक है. इसी तरह अगर वर्नियर से मेजर किया, सपोज ये मीटर रूल था, तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव वाला, ये अच्छा वाला मीटर रूल था. Then you used vernier caliper and you got accuracy up to second decimal place also. Let us call it 7.23 centimeter. 7.23, you will not write it 7.230. And let us say if you are measuring with screw gauge and you got one more decimal place, it was 7.232 centimeter. So we did the same measurement with 4 different measuring devices और 4 अलग-अलग readings आ रही है. ठीक है. And you know that this is the most accurate. This is the most accurate. इससे ज़्यादा accuracy बाकी devices नहीं देंगे. So there is an increasing order of accuracy. Also, if I talk about significant figures here, so 7 centimeter
The 7 centimeter has number of significant figures equals to 1 only. 7.2 centimeter, the number of significant figures, means important digits कौन-कौन से हैं? If we count that, the number of significant digits is 2. 7.23 में, the number of significant figures is 3, and 7.232 centimeter में, the number of significant figures is 4. So you get a basic idea of how to write significant figures. Okay. Acha, you know the scientific way of writing the data? Scientific way of writing the number. अगर 7232 लिखा हुआ है, 7232 लिखा हुआ है, so we like to write it like this: 7.232 into 10 raised to 3. जहाँ पे पहला वाला नंबर, first number should be between 1 and 10. Write it like this: a into 10 raised to b. b कुछ भी हो सकता है, but a should be greater than 1 and less than 10. Like this, we're supposed to use the scientific way. The scientific way of representing the data, any data. Now suppose फिर से measurement here. This time the first digit means पहले वाले से measurement here. Then let us use 4 measuring instruments again. This time there is a new pen or another pen, and we have again 4 readings like this. So first wala you calculated and it was 8 centimeter. So number of significant figures is 1. Then again you calculated and it came out to be 8.0 centimeter. Second वाले मीटर रूल से कैलकुलेट कर रहे हैं, so it is coming as 8.20 centimeter. अच्छा, मैं लीस्ट काउंट लिख देता हूँ. सबका लीस्ट काउंट आई थिंक सबको पता होगा. मीटर रूल 1 का लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर. मीटर रूल 2 का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर. सो लाइक दिस, ये लीस्ट काउंट है इन इंस्ट्रूमेंट्स के जो मेरे पास, जिनसे मैं मेजर कर रहा हूँ उसके स्पेसिफिकली ये लीस्ट काउंट है. सो नया पेन है, उसका मेजरमेंट लिख रहे हैं, तो सेकेंड वाले मीटर रूल से इट इज कमिंग एज 8.0. से 0 आ गया, but 0 will be considered a significant figure here. 0 will be considered a significant figure here. So here number of significant figures is 2, not 1. 0 को भी consider करेंगे significant figures में. Suppose next digit आया, it is coming as 8.00 centimeter. जितनी एक्यूरेसी है डिवाइस की उतने zeros यहाँ पे लिखने पड़ेंगे अगर 0 आ रहा है तो. So here number of significant figures is 3. And let us say screw गेज से मेजर किया तो it is coming as 004 centimeter. तो बीच में zeros है तो significant figures में काउंट होंगे ही. n is equal to, it will be 4. So decimal के बाद अगर zeros आ रहे हैं, so they are counted in significant figures. Decimal के बाद significant figures they will be counted in जितने भी zeros आ रहे हैं they will be counted in significant figures. बाद में सब सारा रूल कंपाइल करके एक साथ लिखेंगे. अभी बस अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ऐसा 0 और 0 काउंट क्यों कर रहे हैं. बट सपोज यू आर मेजरिंग द लेंथ एंड या मास या कुछ भी मेजर कर रहे हैं एंड द डेटा इज कमिंग लाइक दिस.
the measured data is coming as 8,000. Here, I don't have a decimal point. So बाद वाले zeros, they're not guaranteed if they are part of significant figures or not. So here, the number of significant figures is just one. Just one. Because इसको हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 into 10 raised to 3 in the scientific form. इसको ऐसे नहीं लिखना है. We cannot write it as 8.0 into 10 raised to 3. ठीक है, 8 into 10 raised to 3 लिखा. So number of significant figures is coming as 1. N is coming as 1. Suppose there is another measured data and it is written like this 8.000.0. 0.0 लिखने के बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई. 0.0 लिखने के बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई. So number of significant figures will be 1, 2, 3, 4 and 5. All the zeros will be considered. 0.0 लिखने का मतलब ये है कि हमारा जो डिवाइस था वो 4th डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है. मीन्स 8 के बाद 4 डिजिट्स प्लस पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट्स तक एक्यूरेट है. सो अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं सो विल राइट इट लाइक दिस. 8.0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों जेरोस इंक्लूड करेंगे. ओके, सो डेसिमल के बाद जितने भी जेरोस आ रहे हैं दोज आर इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो यहाँ पे 1 था बट यहाँ पे इट इज 4 प्लस दिस 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इसको 8.0 नहीं लिख सकते, इसको 8 ही लिखेंगे. Okay, suppose if the data is like this 0072.0. So Nirbit, tell me the number of significant figures here. Sir, 2. डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है, Sorry, 3. 3. So इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 7.20 साइंटिफिक फॉर्म में इंटू 10 raised to 3. और ये वाले जेरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं. अच्छा, then after this suppose you are calculating density. Calculating density. So density you are calculating by dividing the mass by volume. Mass अलग calculate किया, volume अलग calculate किया, and then you are calculating density. Mass calculate नहीं किया, mass measure किया. You have measured the mass and let us say it is coming as 2.00 kg or 12.00 kg. Let us say mass is 12.00 kg and you measured the volume with some other thing and the volume is coming as 0.2 meter cube. 0.2 meter cube. So calculation के time you have to be sure, हाँ calculation correct होना चाहिए तो you can just write 12 by 0.2. This will be kg per meter cube. Calculate करेंगे तो 120 by 2. So it is coming as 60 kg per meter cube. Okay, but see here अच्छा एक और चीज है, अगर 0.0 अगर डेसिमल से पहले आ रहा है so that will not be considered as significant figure. 0.3 है then you will just write it as 0.3 है तो number of significant figures will be just 1. It will be 1. Okay, so 0.2 है तो यहाँ पे number of significant figures हो गया 1 and if it is 12.00 number of significant figures is 4.
सो जो हमारा रिजल्टेंट डेटा होगा दैट कैन नॉट हैव मोर एक्यूरेसी देन दिस वॉल्यूम. सो यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखेंगे. यहाँ पे कभी 60.00 नहीं लिख सकते हम. यहाँ पे देयर शुड बी ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. सो दैट्स व्हाई आई विल ओनली राइट 60, नॉट 60.00. 60.00 नहीं लिख सकते बिकॉज डेंसिटी कैलकुलेशन का जो एक्यूरेसी है दैट इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज द लीस्ट एक्यूरेट थिंग. मास बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर लिया बट वॉल्यूम उतने एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया. सो वी कैन नॉट राइट इट एज 60.00. इट विल बी ओनली 60 kg per meter cube. Okay, note this down. Noted. Okay, let us write down the rules in a compact form. So first rule is to determine the number of significant figures. Right, rules to determine the number of significant figures. First is non-zero digits are always significant. Non-zero digits are always significant. Then any two zeros between two significant digits are significant. Third rule is a final zero or trailing zero is significant only in the decimal portion. For example, if you write 0.300, then these two zero are significant. This one is not. If you write 0.0560, then decimal के बाद वाले जितने भी zeros है they are significant. पहले वाला ये significant नहीं है. 0.3 लिखा है तो ये वाला significant नहीं है. ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है. ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. बट डेसिमल के पहले वाले दो डिजिट के बीच में आएंगे तभी सिग्निफिकेंट होंगे. अगर ऐसा लिखा है कि 501.000 तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है. नोटेड. अच्छा से ये तो थे अगर मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना हो तो. बाकी जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सो व्हाट वी डू इज सपोज दो डेटा दिया हुआ है. यू आर मेजरिंग द लेंथ. सो पहली लेंथ मेजर की एंड दो पॉइंट्स के बीच एंड यू आर गेटिंग इट एज 11.01 सेंटीमीटर.
एंड सेकेंड लेंथ मेजर किया. सो वी आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. एंड सेकेंड लेंथ इज कमिंग एज 12.3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3. और एक थर्ड क्वांटिटी है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट वी आर डिराइविंग लाइक दिस कि ये दोनों क्वांटिटीज का सम है. तो सम करते टाइम बहुत ही इजिली ऐड कर देना है सिंपली. So it will become 23.31 सेंटीमीटर. बट फाइनल आंसर लिखने से पहले यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये फाइनल डेटा जो है वो उतना ही एक्यूरेट हो सकता है जितना सबसे कम एक्यूरेट वाला डेटा था. सो फाइनल वाले डेटा में n इज इक्वल टू 3 ही होना चाहिए. n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए. सो टू मेक n इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 आ रहा है. टू मेक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल्स टू 3, we have to round off. We have to round off. Round off का रूल्स तो पता होगा, 5 से बड़ा है तो बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो कम कर देंगे. So here we'll just write it as 23.3 centimeter. Do this one yourself. Find the value of L to the appropriate significant figures. Tell me the value, Vaishnavi. 26.6. 26 Six. After that, The full 26.583. I said the round. okay, 583. So this least is this one. So we'll write this as final answer as, the final answer I'll just put it in bracket. 26.6, that is correct. Rules are very simple. And same goes for subtraction. Same rule is for subtraction. जो least accurate है उसके significant figures use करते हैं. Sir, in second question, Hmm. we have to make n equals 2, right? नहीं, यहाँ पे 3 है significant figures. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होते हैं. 1 2 3. यहाँ पे इट इज 4. दो नंबर्स के बीच में अगर 0 आ रहा है तो इंक्लूडेड होगा. और यहाँ पे इट इज 5. Okay, sir.
कुशाग्र टेल मी, क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे एल की वैल्यू? एक मिनट सर। सर 3.6474। 3.6474 एंड राउंड ऑफ करने के बाद टेल मी राउंड ऑफ करने के बाद कितना आएगा ये? कुशाग्र सर 3.65। 3.65। सो एन की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। सो दिस इज अ सिंपल रूल। कभी कभी राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है जब 5 आ जाता है, तो 5 के लिए देयर इज अ डिफरेंट रूल। सो राउंड ऑफ के लिए ऑफ कोर्स पता है कि नंबर 5 से बड़ा है। सपोज यू हैव 1.2347। सो अगर इफ यू वांट टू रिड्यूस इट एंड यू वांट n इज इक्वल टू 4, अभी n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है इसमें, n इज इक्वल टू 4 चाहिए, so it will be 1.235, 1.235. After this, if you want n is equal to 3, तो इसके बाद 5 आ रहा है। So when 5 comes here और यहाँ पे odd digit है, odd digit को हम increase कर देते हैं। So 2 3 will become 2 4. Okay, so odd digit 5 के केस में odd digit आ रहा है, so increase the preceding digit by 1. बट अगर सपोज ऐसा लिखा होता 1.2447, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 4 के लिए विल बी राइटिंग 1.245, बट n इज इक्वल टू 3 के लिए विल नॉट इंक्रीज दिस। जब इवन डिजिट हो so we'll just leave it like that, no change. So 5 हो preceding digit, 5 हो बाद वाला digit, and the preceding digit is even, then no change. ठीक है, ऐसे याद रखना है। These are the rules. So suppose you have to round it off to n is equal to 3. Barbie, tell me the value of rounded off figure. Okay. 1.34. 1.34. सर 1.34 कैसे होगा? मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो सबसे पहले इसको 4 तक ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.335।
Okay. And after this, when you reduce this to 3 significant figures, it will become n is equal to 3 के लिए 1.34 हो जाएगा ये. बट डायरेक्टली नहीं कर सकते. नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते. See, 1.3348, it is closer to 1.34. मीन्स अगर पहले लिखते हैं यहाँ पे 335, so it is closer to 1.34. अगर डायरेक्टली किया तो ये 1.33 ही रह जाएगा. ठीक है. ओके सर. Tell me in this case, if you want number of significant figures to be 3. Tell me निर्मित कितना आएगा ये? जीरो पॉइंट जीरो सेवन. सॉरी 0.007. यहाँ पे जब 5 आएगा, सो ये नंबर ऑलरेडी 6 है, तो इवन है. इवन डिजिट को हम इंक्रीज नहीं करते, सिर्फ ऑड को इंक्रीज करते हैं. Then 0.006. 0.006. So ये राउंड ऑफ रूल्स है. Should I make a notes for this? Okay, write down the rules for this. Write down. If the digit next to the one rounded, is more than 5, the digit to be rounded is increased by 1. The digit to be rounded is increased by 1. That is the first rule. Second rule, right? If the digit next to the one rounded is less than 5, if the digit next to the one rounded is less than 5, then the digit to be rounded is left unchanged. Then the digit to be rounded is left unchanged. Is left unchanged. Next, third rule. If the digit next to the one rounded is 5, if the digit next to the one rounded is 5, then the digit to be rounded is increased by 1. Then the digit to be rounded is increased by 1 if it is odd. Then the digit to be rounded is increased by 1 if it is odd. And is left unchanged if it's even. And is left unchanged if it's even. These are the rules for rounding off or addition subtraction.
एंड सेम गोज फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. लेट अस डू सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए विल डू सम क्वेश्चंस. सो ये सब कंसेप्ट अभी तो इम्पोर्टेंट है ही. इवन इन इंजीनियरिंग व्हेन यू स्टार्ट मेजरिंग द एक्चुअल थिंग्स, वहां पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जिनको ये नहीं पता व्हाट दे डू कि हाँ कुछ मेजर किया, कैलकुलेट किया डेंसिटी, एंड डेसिमल के पास वो जो कैलकुलेटर होता है डेसिमल के 6-7 प्लेसेस तक वैल्यूज तो देते ही है, सारा डिजिट्स कॉपी कर लेता है. बट यू शुड नो कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स कॉपी नहीं करने हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही कॉपी करने हैं. एंड एवरीबडी टर्न ऑफ देयर कैमरास. इंजीनियरिंग की बात करते ही ऐसे कैसे चलेगा? सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सपोज एग्जांपल इज लाइक दिस. ये थोड़े स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, रूल्स सब सेटअप कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं. अभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. अभी के लिए तो ऐसे ही चलेगा ये. अच्छा, सपोज multiplication is defined like this. Value of L is 25.2 into 1374 divided by 33.3. If you multiply this, it comes out to be 1039.7838. So what should I write here? Barbie, tell me. Calculation कर दिया है. What should be the value that I should write here? One zero four zero. Yeah, 1040. सिर्फ 3 significant digits आने चाहिए. ये number of significant digits is 3. बाद वाला जीरो कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, insignificant digits. So 1040 is answer. Please turn on your cameras. Come on. कुछ लोग डेटा सेव कर रहे हैं, शाम को गेम्स खेल रहे हैं. Is that the case? I'm waiting for you to turn on your cameras. Still waiting. Okay. So multiplication division में ध्यान रखना है, इसमें भी least significant figure वाला लेना चाहिए, जो सबसे कम हो. यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 है, तो 3 वाला ही लेना है. ओके, सो रूल सिंपल है, इसको मैं नोट डाउन नहीं करवाऊंगा, बस ये याद में रखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही विल बी दी. नॉर्मली सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले ही नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स. सब कुछ कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद फिर यू हैव टू ऐड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला थिंग. So this is how multiplication, division, addition subtraction में भी write the significant figures. And after this comes the calculation of errors in measurement. ये important topic है, इससे हर साल questions आते ही हैं, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी. Errors in measurement. So schools में experiments कराए जाते हैं, अगर अच्छा स्कूल है तो. नहीं अच्छा स्कूल नहीं है तो भी कराए जाते हैं. आई मीन टू से कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो स्कूल में मिल जाते हैं, एंड वी डू एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग दैट. मेरा स्कूल बड़ा अच्छा था, सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, एंड यू कैन गो देयर एंड डू द एक्सपेरिमेंट व्हेनेवर यू वांट. सो अभी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. सपोज यू आर मेजरिंग दी
टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। कैलकुलेट नहीं कर रहे, मेजर कर रहे हैं। सो व्हाट आई डिड, मतलब मुझे जो मेरे टीचर ने बताया था हाउ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, यू फर्स्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। वंस इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, सो सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए टाइम मेजर नहीं करना है, बिकॉज दैट विल बी लेस एक्यूरेट। सो ही टोल्ड अस टू मेजर फॉर एटलीस्ट 20 ऑसिलेशंस। उससे एरर कम हो जाता है हमारे डेटा में। वन ऑसिलेशन में तुरंत टाइमर स्टॉप करना, ज्यादा एरर होगा। बट 20 ऑसिलेशंस में जो टाइमर स्टॉप करने का टाइम, वो में जो एरर आ रहा है वो 20 से डिवाइड हो गया। सो एरर कम हो गया उससे। एक स्टूडेंट पूछा, सर 1000 टाइम्स क्यों नहीं कर देते और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है? तो क्लास का टाइम लिमिटेड होता है, सर ने बोला वैसे बैठ के कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड। सो 20 टाइम्स है, मीन्स टाइम कैलकुलेट किया तो एरर भी 20 टाइम्स डिवाइड हो गया अगर थोड़ा बहुत एरर रहता, क्योंकि ऑफ कोर्स मीन्स यू सॉ दैट कि हाँ ये 20 कंप्लीट हो गया एंड यू जस्ट पुट द बटन। एंड वी वर रियली एक्साइटेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ना। मेरा जो ग्रुप था बड़ा अच्छा था। सो देयर आर 4 पीपल इन माय ग्रुप। मीन्स आई हैड डेटा, मीन्स एक पर्सन के पास टाइमर होता था and one person used to set up these things and the other would say कि हाँ start and stop. He will just say start and stop, nothing else. जिसके पास टाइमर होता था, he will be just putting on. And मेरा काम होता था कि हाँ सब कुछ प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए ऐसा। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स करके बस घर जा रहे हैं, बट आई वाज मी, रोप अच्छे से बहुत ही टाइटली बांधना है और ऑसिलेशन सच में कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं लेना तो एरर ज्यादा आएगा एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर द वैल्यू दैट वी कैलकुलेटेड फॉर जी दैट डे। मतलब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो जी की वैल्यू वी गॉट इट एज 9.7 एंड actually the value of G is in Varanasi is 9.7. So we're really happy that day कि हाँ we did some experiment and got the value of G by experiments. So see this 20 oscillations on that day also I was counting how 20 oscillations start stop that I did, and some friend was measuring the time. Length measure करने वाले का काम एक और friend का था. So all these things. So again कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर आता ही है, मींस इट कांट बी एरर फ्री। सो यहाँ पे हम टाइम मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर किया एंड फर्स्ट टाइम यू आर स्टार्टिंग द टाइमर एंड यू आर कैलकुलेटिंग टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस। अभी बाकी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, उसके बारे में वरी नहीं करना कि जी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पहला टाइम कैलकुलेट किया, लेट अस से इट इज कमिंग एज 39.4 सेकेंड। सेकेंड वाला कैलकुलेट किया, the time is coming as 39.6 seconds. और ये डिफरेंट आता ही है हर बार। वैसे अगर if all of your 3 data is coming exactly the same, the teacher would know कि हाँ एक ही बार करके एक्सपेरिमेंट 3 बार चिपका है, कुछ लोग खुद से ही चेंज कर देते हैं डेटा, बट that is not the physicist way. So third time let us calculate किया और इतना आया 39.5 सेकेंड। ठीक है, तो 3 रीडिंग तो कम से कम लेते ही है, और जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो तो 10 रीडिंग्स लेते हैं और ओवर द टाइम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, देन दे आर श्योर कि हाँ जो जी कैलकुलेट किया वो करेक्ट है। हमें 2 घंटे में एक्सपेरिमेंट करके कर जा रहा होता था लिख के सब कुछ। सो 3 टाइम्स इज इनफ। अच्छा, सो these are the measured values. These are the measured values. T1, T2 and T3. Okay, then we'll calculate the average time. Calculate the average time. So कोई एक वैल्यू नहीं लेते जो क्लोज हो। Where we started saving our data शाम को
इंस्टा चलाना है, लाइव जाना है। ओके, एनीवेज जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। T1 प्लस T2 प्लस T3/3, वो ये बहुत मेहनत करके कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 39.5 सेकेंड। ओके, सो जो ट्रू वैल्यू बोलते हैं, दैट इज एवरेज टाइम को हम बोल देंगे दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। then you have to calculate error in reading T1, error in first reading, error in first reading or error in T1. So error in T1 will be T minus T1. इसका मॉड ले लेते हैं, so it comes out to be 0.1 second. So इसमें error आया 0.1 second. Then error in data T2, उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, it will be T minus T2. That will be 0.0 second. Then error in T3 calculate करते हैं, that would be T minus T3. Mod लगाया, so it will be again coming as 0.1 second. ठीक है, this is error in the values of T1, T2, T3. Then यहां से हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एरर. This is the actual error. Actual error is written as T1, error in T1 plus error in T2 plus error in T3. So we write it like this, delta T1, ये वाला delta T1 है, delta T2 and delta T3. So actual error हो जाएगा delta T1 plus delta T2 plus delta T3. अच्छा, जो एक्चुअल टर्म जो यूज करते हैं दैट इज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर. दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर. This is called absolute error in T1, absolute error in T2, and absolute error in T3, like this. This will get as 0.2 divided by 3 seconds. This is the absolute error. Okay, इतना note down करना है, then I will proceed further. ये सारे डिटेल्स बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है. बस अगर स्कूल में प्रॉपर्ली पढ़ाया जा रहा होगा तो ये पढ़ाया जा रहा होगा, अदरवाइज दिस इज इग्नोर्ड. जस्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है एरर्स का. एंड द हार्म इज इन व्हेन फाइनल, जब जेई का एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चंस एकदम फंडामेंटल्स आते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला काम करना इज रेयर. सो तीनों सब में एरर्स कैलकुलेट करने के बाद फाइनल एरर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वी राइट इट लाइक दिस, सब सारे एरर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 3. ठीक है. अच्छा, मॉड लेना इंपॉर्टेंट है. मॉड नहीं लिया तो नेट तो जीरो ही आएगा बिकॉज मीन निकाला था, इसलिए हम एब्सोल्यूट लिख रहे हैं. मॉड लेना जरूरी है, नहीं तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो एरर्स अगर हैं तो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर हो, दोनों एड अप होते हैं हमेशा, कभी भी कम नहीं करते एक दूसरे को. वो अश्यूम करके चलते हैं ऑन अ सेफ साइड. तो 0.3, अच्छा यहाँ पे फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज किया मैंने. 0.2/3 0.066 आ रहे, तो मुझे सिर्फ मेरे ओरिजिनल डेटा में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर था एरर में. सो आई कैन ओनली राइट इट एज 0.1 सेकेंड. इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे. सो फाइनल डेटा जब लिखते हैं, सो फाइनल रीडिंग जब लिखेंगे, सो इट विल बी
फाइनल रीडिंग आई टाइम और 20 ऑसिलेशंस, दैट वुड बी एवरेज कितना आया था, दैट वाज कमिंग एज 39.5, एरर कितना आया था 0.1 सेकेंड. सो आई राइट इट लाइक दिस कि 39.5 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं हम फाइनल आंसर को. 39.5 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड. So this is the reading, average reading या true reading, and this is the absolute error. प्लस माइनस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सो प्लस माइनस लिखते हैं. एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करने के बाद वी डिफाइन रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, सो अगर टाइम को ऐसा लिखा था t प्लस माइनस डेल्टा टी, सो रिलेटिव एरर को लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी. डेल्टा टी बाई टी, दिस विल बी द रिलेटिव एरर. 0.1 divided by 39.5. This is called the relative error. Of course, ये भी प्लस माइनस लिखते हैं. और इसके बाद रिलेटिव आ गया, तो इसके बाद फिर एक और एरर डिफाइन करते हैं, दैट इज परसेंटेज एरर. ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है रिलेटिव एरर से. सो परसेंटेज एरर आता है फिर प्लस माइनस डेल्टा टी बाई टी इंटू रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट दी परसेंटेज एरर. सो इस केस के लिए जो है अलग लिखते हैं. Relative error for this case will be 0.1 by 39.5, and the percentage error, we write relative error in time. Relative error in time, and percentage error in time, that would be 0.1 into 100, that will be 10 by 35. एग्जाम में सिंपलर वैल्यूज दी होती है तो आराम से कैलकुलेट हो जाता है. जस्ट यूज माय calculator for this. उसके बाद जो फाइनल रीडिंग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. फाइनल रीडिंग या तो इस तरह से लिखा, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल रीडिंग इज ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 39.5 सेकेंड, देन प्लस माइनस ये आ रहा है 0.25%. 0.25%. So this will be 39.5 second plus minus 0.25%. तो ये in the form of percentage error, and या तो percentage error के फॉर्म में लिखते हैं फाइनल आंसर, या तो absolute error के फॉर्म में लिखते हैं. These are the two ways in which errors are written किसी भी डेटा के लिए, and ये formulas these are important. So here relative error is delta t by t, and relative error को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो you get the percentage error, and final reading को हम ऐसे लिखते हैं जो एवरेज करके आया प्लस माइनस the percentage error. Then for errors in sum, we measure
मीन्स ए बी आर वो क्वांटिटी से जो मेजर की जा रही है एंड दैट इज कैलकुलेटेड. Error in A is delta A, error in B is delta B. So the formula is we add the errors. Delta Z is plus minus delta A plus delta B. Errors are just added. If Z is A minus B, again error in A and error in B is just added up. So negative sign है तो भी errors add up ही करेंगे. And if two quantities are multiplied, then we can solve it like this. Put A as A plus minus delta A, B as B plus minus delta B, Z as Z plus minus delta Z, and then we can cancel out the Z. Product open करेंगे तो चार components मिलेंगे. A, B और Z cancel out हो जाएगा. And delta A and delta B, they are already small. So their product will be much smaller. जैसे अगर ये 0.1 है तो 0.01 हो जाएगा. So that is why we can ignore this. We can consider this as negligible. What we get is delta Z is A delta B plus B delta A. So it's convenient to write it in the relative error form. मैंने Z से divide किया या तो AB से divide किया on the right hand side. So the result is delta Z by Z is plus minus delta A by A plus delta B by B. So दोनों के relative errors add होते हैं जब हम quantities को multiply करते हैं. Errors add नहीं हो रहे, relative errors add हो रहे हैं. अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को तो परसेंटेज एरर्स भी ऐड हो रहे हैं. सो परसेंटेज एरर इन Z will be percentage error in A plus percentage error in B. And for this case, when Z is K, A का power something, B का power something, C का power something, पहले log लेते हैं, then differentiate करते हैं, and then DA को हम delta A, DB को delta B, DC को delta C लिखते हैं, DZ को delta Z लिखते हैं. So यहाँ से the relative error in Z आ जाता है प्लस माइनस पावर जो ए का पावर था, पावर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन ए, पावर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन बी, एंड पावर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन सी. So finally we can write here the percentage error B, percentage error in Z, that will be equal to percentage error in A, P times percentage error in A, P times percentage error in A plus Q times percentage error in B plus R times percentage error in C. That's the way we write. So formula याद करना मे भी डिफिकल्ट फील हो रहा हो, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला से तो बहुत इजीली हो जाता है. So कुछ प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करेंगे हम. And so it's given here that error in the measurement of length is 2% and error in the measurement of G is 4%. तो यहाँ L और G measure करके we are calculating the value of time. So which form is this? This can be written as the form as t equals to 2 pi L का power half divided by G का power half. So last वाला form है ये. So we can write it like this, delta t by t. Constant है तो ignore करेंगे. Then power है half, so half delta L by L plus half delta G by G. माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ही लिखेंगे, हाफ डेल्टा G by G. So percentage error in T आ जाएगा, percentage error in T, that is delta T by T into 100%, that is half of error in length, that is 2%, and error in G, that is 4%. So error आ गया 1% plus 3%, 2%. The value is 3%. Total error is 3%. अगर रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला निकाल लिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा. So the percentage error in measurement of time is 3%. नोट कर लिया. कोई डाउट है इसमें?
किसी स्टेप में कोई कैलकुलेशन में डाउट? Anyone there? No doubt, sir. Okay. Turn on your cameras and then we'll start with a question from JEE Mains जो इस साल आया था. Okay. So the question was like this. The resistance is V by I. R equals to V by I. As a formula given है, where V is equal to 50 plus minus 2 volt, and the current is 20 plus minus 0.2 ampere. So you have to find, the question was the percentage error in R is X%. Exactly ऐसा ही question लिखा हुआ था, and ये NAT type में आया था, numerical answer type में. So they asked the value of X to the nearest integer. Question was framed exactly like this. This is the question. And ध्यान रखना यहाँ पे 2% नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है. तो परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं लाइक दिस. परसेंटेज एरर V में हो जाएगा 2/50 into 100. इतना परसेंटेज एरर होगा यहाँ पे. यहाँ पे परसेंटेज एरर होगा 0.2/20 into 100. ठीक है, सॉल्व करना है ये. देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको, करेक्ट आंसर ला पाते हैं. Anyone got the answer? Yes, ma'am. 5%. 5% is correct. Anyone else? Vaishnavi got the right answer. तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहें इसका तो सिंपली ऐसा होगा, डेल्टा आर बाई आर. वी का पावर 1 है, आई का पावर -1 है. सो इट विल बी 1 डेल्टा वी बाई वी. -1 नहीं लिखेंगे, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो डेल्टा आई बाई आई. तो परसेंटेज एरर वोल्टेज और करंट में निकाल के विल जस्ट ऐड देना. So percentage error in voltage will be delta V by V into 100%. Delta V will be 2/50 into 100. This will come out to be 4%. Then error in current is delta I by I into 100%. So current is 0.2/20 into 100%. This is 1%. So percentage error in R हो जाएगा delta R by R into 100%. That is delta V by V into 100%. So 4% plus 1%. That is 5%. That is the correct answer. Vaishnavi, you solved it like this? Nirmit? Yes. So I didn't understand. Which part? Why did you add delta V by V and delta I by I? See, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला. So R is equal to V by I है. That means V का पावर 1, I का पावर -1. So पावर -1 भी है यहाँ पे, सी -R भी था, तो एरर ऐड होगा. Okay, sir. So एरर हमेशा ऐड होगा, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, सर बट वो प्लस माइनस होगा ना? प्लस माइनस लिख सकते हैं, +-5%. तो नियरेस्ट इंटीजर में हम 5% ही लिखते हैं उसको. जब आंसर लिखना होता है, सपोज रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया,
फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो ये ऐसा ऐसा आएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V इज 50, I इज 20, तो 2.5 एम्पियर। तब यहाँ पे लिखेंगे ±5%। फाइनल आंसर लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे। तो सिर्फ परसेंटेज अगर बोलना है तो जस्ट 5% ही बोलेंगे। वैष्णवी गॉट इट राइट। अभी और भी क्वेश्चन है जेई मेंस के, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे, इस चैप्टर से तो। और मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में इसको एक शॉर्ट टॉपिक की तरह एक 10-15 मिनट में पढ़ा के इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर सी एरर नहीं दिया हुआ है बट लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एरर। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एरर और एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर से कुछ मेजर किया और एरर गिवन नहीं है। सो कितना एरर हो सकता है वर्नियर कैलिपर का? अगर लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, सो एरर भी उस क्वांटिटी का हम लिख देंगे, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सो सपोज लेंथ मेजर किया एंड यू गॉट द लेंथ एज 5.34 सेंटीमीटर और एरर नहीं दिया हुआ है। एरर नहीं दिया हुआ है तो लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेंगे। लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेंगे क्योंकि इससे छोटा एरर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, लीस्ट काउंट से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता हमारा डेटा। सो क्वांटिटी विल बी रिटन लाइक दिस, 5.34 ±0.01 सेंटीमीटर। तो अगर एरर नहीं दिया हुआ है बट लीस्ट काउंट दिया हो तो लीस्ट काउंट को ही एरर कंसिडर करते हैं, बिकॉज लीस्ट काउंट से ज्यादा एक्यूरेट अपना डेटा नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अभी इसका पढ़ा नहीं है, सो आई विल टेल यू द फॉर्मूला। और this is also this is also a question of JEE Main this year. So यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। आई जस्ट राइट द फॉर्मूला, कहाँ से है उसको बाद में पढ़ना है। So the formula is this. और also tell you कि फॉर्मूला में ये सब वर्ड्स क्या मीन कर रहे हैं, लेटर्स क्या मीन कर रहे हैं। सो यहाँ पे y is यंग्स मॉडुलस, m is the mass of object, then L is the length of wire, A नहीं, A is the area of wire। सो मैं इसको पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। So R is the radius of wire, and E is the elongation।
is the elongation. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. कई सारी क्वांटिटीज हैं. जिन क्वांटिटीज में एरर नहीं दिया हुआ है, जैसे जी और पाई में एरर नहीं है, पाई तो एक कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू में भी एरर नहीं दिया हुआ है, तो उसमें एरर 0 कंसिडर करना है. तो 4 क्वांटिटीज है: मास, लेंथ, रेडियस और इलांगेशन. सो फ्रैक्शनल एरर मतलब परसेंटेज एरर ना? फ्रैक्शनल एरर हम रिलेटिव एरर को बोलते हैं, बट आई थिंक इसमें दे मीन दिस कि हाँ परसेंटेज एरर कितना था. फ्रैक्शनल एरर इज सेम एज रिलेटिव एरर, बट ये क्वेश्चन मेमोरी से लिखे गए हैं, सो आई थिंक यहाँ पे परसेंटेज एरर होना चाहिए था. कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है. जी की वैल्यू 9.8 लेनी है ना? जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, बट सब कुछ 1 और वो दिया हुआ है. जी 10 ही अज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा एरर नहीं आएगा उससे. किसी का आंसर आया अभी तक? So 1.4 1.4% आ रहा है या फ्रैक्शनल एरर आ रहा है? percent. परसेंट. हाँ 1.4. 1.4. भारवी एंड कुशाग्र. One. ओके, टू कंप्लीट द कैलकुलेशन. तो इसमें यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, जी की वैल्यू भी जरूरत थी ही नहीं. It will be just 1.4%. तो एग्जाम में यहाँ पे परसेंटेज एरर ही पूछा होगा. मीन्स ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मे बी वो टर्म याद ना हो. बट फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई बाय वाई ओनली. फ्रैक्शनल एरर इज द सेम एज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर is the same as percentage error. Okay. First option is the correct option. Bharvi, any doubt? No, sir. Okay. Kushag? Kushag, I can see your head. हाँ थोड़ा सा दिख रहा है head. Tell me, कोई doubt है इसमें? I don't think Kushag can hear me. ठीक है, एक और क्वेश्चन करता है, JVS का ही है. Three percent. 3% is correct. Very good. और किसी का? नहीं समझा ये वाला. अच्छा सी, यहाँ पे जो या तो ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो सी यहाँ पे जी अननोन है, मीन्स एल और टी मेजर कर रहे हैं, जी कैलकुलेट कर रहे हैं. So I can rearrange this formula in terms of G. So then after this, delta G by G, 4 pi square तो constant है, will be equal to delta L by L plus twice of delta T by T. इतना क्लियर है भारती? हाँ सर. ओके. आफ्टर दैट सी, टाइम जो है 200 ऑसिलेशन का दिया हुआ है, तो मुझे 1 ऑसिलेशन का निकालना पड़ेगा. That will be 1 by 2. So delta L by L आ जाएगा
मिलीमीटर है तो 0.001, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट सेम रखना है, सो मैं 1 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर भी रख सकता हूँ, इंटू 100 प्लस डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, सो इट विल बी 1 it should be twice of delta t। अच्छा 100 सेकेंड के लिए एरर, सो एरर भी 1/100 टाइम्स होगा ना, सो वी डोंट नीड टू फाइंड द एक्चुअल टाइम, पूरे टाइम में ही एरर इतना है, बिकॉज एरर भी 100 टाइम्स हो जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ टोटल एरर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट विल बी 100 सेकेंड्स into 100, so this will come out to be 3%। निर्मित समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। से अगर सब कुछ प्रॉपरली लिखा हो तो 3 स्टेप से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 सेकेंड्स 1 मिनट पढ़ने में जाएगा एंड 30 सेकेंड सॉल्व करने में जाएगा, तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। बस व्हेन यू आर यूज्ड टू इट, अभी तो टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। राइट द रिलेशन, सो रो एल अपॉन ए होता है, एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, सो रो विल बी पाई डी स्क्वायर आर बाई 4 एल। सर रेजिस्टिविटी मतलब रो ना। या आर को वी अपॉन आई लिख देंगे, तो हमारे जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आई थिंक लीस्ट काउंट दिए नहीं हुए हैं। I'll take the data from other sheet. So for the diameter, take it as 0.01 जितना millimeter. डेसिमल है उतना लेना है ना। Yeah, that also you can do. You can use the decimal as the least count. कितना आंसर आ रहा है? थ्री पॉइंट नाइन 3.9। 3.9। और किसी का आंसर आ रहा है? आंसर will be 3.9। हाँ सर। Okay, good. कितना आ रहा है आंसर? सर 1.13। 1.13। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है या सेम आंसर आ रहा है? 1.13। 1.13। वैष्णवी? 1.9 1.13।
कुशाग्र समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ओके, सॉल्व हो गया था। सर बस लास्ट पार्ट कैलकुलेट ही कर रहा था। ओके ओके, ठीक है, फिर तो आ जाएगा। एक और लास्ट है एंड देन दिस आल्सो केम दिस ईयर। सो एक पेपर में दी NAT, द इंटीजर वेयर फ्रॉम 0 to 100, 0 to 99। सो यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखने हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, 0 से 99 के बीच आंसर आएगा। सर 34। 34, ओके। 34. 34, दो लोगों का 34 आ रहा है। 34. ओके, कुशाग को कितना आ रहा है, टेल मी। So answer will be 34. 34 is correct. So this is the numerical answer type.